To welcome our chief guests and other dignitaries, I would request the Commander Tej Patel, followed by Scouts Jia Patel, Himanshi Nakoor, Manjar Shah, Margi Patel, and Divya Patel, and Keval Prajapati, followed by Band Kushal Patel, Braj Shah, Rushal Patel, Dhruvang Shah, Dhanya Shah, Jainesh Gohil, Rudra Patel, Yogi Patel, Pavitra Patel, Daksh Soni, and Mantra Prajapati to welcome our chief guest. I would request Scout Jia Patel to escort the chief guests and dignitaries to their places. I would request everyone to please settle down. A very good morning to one and all present here. I, Preetha Patel, along with Shreya Patel of Tripta Day School, welcome you all to celebrate our 78th Independence Day, a day of immense joy and pride. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान या फिर भारत माता, किसी भी नाम से पुकारो, हमारा देश हमें प्राणों से प्यारा। आज हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हम सभी के लिए गर्व का प्रतीक है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाई थी। हम आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। Our respected chief guest, Shri Praful Seth, is an IIM Kolkata MBA graduate with over 35 years of experience as a senior management consultant in diverse fields including education, training and motivating, manufacturing, development planning, World Bank projects, funds mobilizing and marketing. He is also a motivator with strong leadership qualities with the focus on team building. So now, to start our program, I would request Rudra Patel to say a welcome speech. महाजनस्य संसर्गः कस्य नौन्नति कारकः पद्मपत्र स्थितं तोयं धत्ते मुक्ता फलश्रियम्. Company of a great person is always beneficial. Like drop of water on a lotus leaf appears like a pearl. Namaste and warm greetings to everyone present here. Myself, Rudra Patel, studying in grade 10th in Tripta English School. Today, we are gathered here to celebrate
one of the most important events in our country's history, Independence Day. Before we come together to mark this special day, I would like to invite our honorable chief guest, who is a trainer, a motivator, and a senior management consultant, Mr. Praful Seth. Our guest of honor, Mr. Harshvardhan Choksi, and members of Lions Club, Manav Mandir, Dharmendra Bhai Soni, Ramesh Bhai Soni, Hitesh Kumar Panchal, Gajendra Bhai Panchal, and Heenal Ben Shah. Our Managing Director, Dr. Archit Bhatt, Director in Finance, Dr. Jyoti Bhatt, Principal of Tripta English School, Dr. Pratiksha Parikh, Principal of Tripta Day School, Mr. Rakesh Patel, Vice Principal of Tripta English School, Mr. Bhavin Pathak, Campus Head of Kids Republic, Miss Shalu Parthi. I would also like to welcome Mr. Vijay Singh, Director from NSD, National School of Drama, and now he is associated with us in Theatre in Education. Coordinators, staff members, and my dear students, it is my pleasure to welcome you all to this auspicious occasion to celebrate 78th Independence Day of our great nation. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद रुद्र पटेल। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि को तुलसी के पौधे द्वारा सम्मानित करने के लिए त्रिपदा डे स्कूल से त्रिशा जोशी और विश्वा राजगोर को और त्रिपदा इंग्लिश स्कूल से दिया पटेल और प्रांसी पटेल को आमंत्रित करना चाहूंगी। हर्षवर्धन चौकसी, श्री धर्मेंद्र भाई सोनी, श्री रमेश भाई सोनी, श्री हितेश कुमार पंचाल, श्री गजेंद्र भाई पंचाल, श्रीमती हिनल बेन शाह। Please do give a big round of applause to all of them. Now I would request Scout Jia Patel to escort the chief guests and dignitaries near the flag.
lovely sky, a symbol of our unity and pride. So let's keep it flying high, let's keep it flying high. Now I would request Commander Tej Patel to disperse the band and scouts. हम यह जानकर गर्व की भावना के साथ यहाँ खड़े हैं कि हम ऐसे देश में रहने के लिए भाग्यशाली है जहाँ स्वतंत्रता और लोकतंत्र कायम है। तो आइए हम इस स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने के लिए देवीशा को आमंत्रित करें। याद करो वे कुर्बानी जब इनकलाबी डोले थे, भारत माँ के वीर दीवाने सिर के बल दौड़े थे। माँ भी अपने बेटे को तब काला तिलक लगाती थी, उनके चरणों की मिट्टी भी चंदन कहलाती थी। उस माँ की तो चीखें भी देश राग बन जाती थी, जिस माँ के अपने बेटों की अर्थी घर पर आती थी। भारत की यह पावन धरती बलिदानों की छाती थी। यूं ही नहीं यह तिरंगा शान से लहराया था, इस वतन को रोशन करने के लिए कितनों ने खुद को जलाया था। नमस्कार, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के विशेष दिन पर मैं आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा आंदोलन का समर्थन करते हुए हर घर तिरंगा फरकाने का अनुरोध किया है। देशभक्ति क्या है? ये देशभक्ति कोई बड़ी संज्ञा नहीं है। देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट की भावना है। रानी लक्ष्मीबाई एक प्रसिद्ध देशभक्त जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। जब सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं और आजाद हिंद रेडियो शुरू करते हैं, वो है देशभक्ति। जब भगत सिंह ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए शहीद हो जाते हैं, वो है देशभक्ति। आज कहाँ गई हमारी यह देशभक्ति? भारत को पूरे विश्व में अपनी असाधारण संपदा, रणनीतिक स्थिति, कृषि प्रचुरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। आज इसी भारत को हमें फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। इसलिए तकनीक जानने वाला हर युवा अब्दुल कलाम बने। IIT नीट से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो वह भारत के लिए खेले। यदि कोई मनु भाकर शूटिंग में नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए 2 मेडल जीते तो वह भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाना फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाए कि जापान से पहले भारत का नाम हो। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स और सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पुण्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनाव और मजहब बदल जाता था। हमारा भारतवर्ष जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र है।
मैं देवीशा बावसार कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गई वो नैतिकता जो बचपन में हमने सीखी थी, मानवता की नेक दुआई ग्रंथों से जो मिली थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Devisha. It was a stupendous speech. हर कार्यक्रम नृत्य प्रदर्शन के बिना अधूरा है, इसीलिए मैं त्रिपदा डे स्कूल के कुछ नन्हे प्रतिभाशाली डांसर्स को बढ़ते चलो गीत पर डांस करने के लिए बुलाना चाहूंगी। सरहद पे हमें सरहद पे दिल आवाज लगानी है, जय भारत माता। माथे पे तिलक दे हिंद लगाओ, मेरी निशानी है। सरहद पे चले सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक दे हिंद लगाओ, मेरी निशानी है। सूरज की तरह बढ़ के हम पर्वत को गिरा के बढ़ते हम, चट्टान से चौड़े तीनों में तूफान उड़ाना है जोश में सर करोश लड़ जाना है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, हम एक साथ हैं एक दिशा बढ़ते चलो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, एक साथ में एक दिशा बढ़ते चलो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, झुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो। Wow, what a flabbergasted performance that was. It truly blew our minds. Thank you so much. You have all made us very proud. Now I would invite the students of Tripada English School to perform a skit, namely, Kya Nirash Hua Jaye.
ईशा है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज श्रद्धांजलि स्कूल के 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी एक नाटक को प्रस्तुत करने वाले हैं। उस नाटक का विषय है क्या निराश हुआ जाए। इस नाटक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस नाटक में हम देखेंगे कि हमारे सपनों का भारत कैसा होगा। तो लीजिए देखिए हमारी प्रस्तुति। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी अधिक दोषी दिख रहा है, गुण ही कम या बिल्कुल ही नहीं। यही तो चिंता का विषय है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत की सतीश के कहर में डूब रहा है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान भविष्य के सपनों का भारत है और रहेगा। सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले निरीह और बोले वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, यही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रकाश शक्तिमान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के शरण पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। संसद की गरिमा बनाए रखें। हुआ यह है कि इस देश के कोटि-कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को ज्यादा उन्नत और सुचारू बनने के लक्ष्य से प्रेरित है। सर परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे भी लक्ष्यों को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। परंतु भारतवर्ष सदा कानून को धन के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। सर धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है।
संकोच नहीं करते। सर, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुरा यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। लेकिन बुराई में रस लेना बुरी बात है, पर अच्छाई में उतना ही रस लेके उजागर न करना ये और भी बुरी बात है। सर, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है, इन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यह बहुत सही बात है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मुंबई की ट्रेन आने वाली है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि तैयार हो जाए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। उन दिनों टिकट बाबू सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचान दबा उपस्थित हुआ। उसने मुझे भी पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने भी मुझे नहीं देखा, मैंने भी आपको नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी तो लुप्त ही हो गई है। मैं एक दिन बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। सबने बस में बैठे तरह की बातें करना शुरू कर दिया। तभी किसी ने कहा, अरे बहन, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ऐसी तरह एक बस को लूटा गया था। हाँ बहन, 1 साल पहले ऐसा ही हुआ था। वह बहुत बुरा हुआ था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। मेरे बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, पर मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। कुछ नौजवानों ने तो ड्राइवर को मारपीट करने का हिसाब बना लिया था। ड्राइवर की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। बताइए, हम लोग बस का कुछ उपाय कर रहे हैं, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। मैंने उन्हें समझाया कि इसे मारना ठीक नहीं है। इसकी बातों में मत आइए, आपको धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू क्या भेज दिया गया है। कंडक्टर अंकल भी है। अड्डे से नहीं पहुंचाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। कहाँ दूध मिल गया, थोड़ा लेता है। सबने कंडक्टर को धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफी मांगी। बस सहित सारे यात्री 12 बजे से पहले ही अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल भी नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघातक चीज भी मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जिनमें लोगों ने अपना सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बनाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े। इस अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे शक्ति दे के मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई नीतियाँ गलत नतीजे तक पहुँच गई है। इन्हें बदलना होगा। वस्तुत आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमारे महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है।
Thank you so much. That was a spectacular performance. Now I would like to call the students of Tripta English School to grace the stage with captivating dance performance on Lehra Do. अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जगो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। हो हाथ जन के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ जन के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जान भी लो तो दिखा क्या जोर मालूम होता है, जान भी लो तो दिखा क्या जोर मालूम होता है, हिम्मते मर्दा अगर हो संगदा भी होता है, जमाने को दिखा दे खुद में दम क्या होता है, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, 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 सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। No one can ever forget the words given by Bharat Muni. There is no book, there is no sculpture, there is no knowledge, there is no deed which is lacking in dramatic art. This special occasion would be incomplete without a drama. So let us invite the students of Tripta Day School to perform a drama, namely Tarika, Samaj ke liye ek nayi pehal. Shreya, you must have noticed
How often there is difference of opinion between parents and children regarding success and satisfaction, mustn't you? Yes. Likely, this drama will beautifully highlight those varying perspectives in every household. So let's see some of the opinions and outcomes. दो दोस्तों की जिनकी दोस्ती बड़ी बाकी है, जैसे एक कृष्ण तो दूसरा सुदामा, एक पतंग तो दूसरा मांझा और एक टॉम तो एक जेरी। अरे वाह, क्या दोस्ती है। क्या नाम है इनका? इन दोनों का नाम है हेतांशी और रिया। हेतांशी बचपन से टॉपर है और रिया एवरेज स्टूडेंट। अच्छा, टॉपर और एवरेज की दोस्ती पहली बार देखी। हाँ, पर हेतांशी 10th में आने के बाद कुछ बदल सी गई थी, स्टडीज में भी डाउन हो गई थी। क्यों, ऐसा तो क्या हुआ था? तो ये बात तब की है जब दोनों दोस्त 9th का रीजन लेने जा रहे थे। इस बार का रीजन कुछ चौंकाने वाला था। रिया साइंस में फेल हुई थी और आश्चर्य की बात यह है कि टॉपर हेतांशी मैथ्स में फेल हुई थी। क्या? वो तो टॉपर थी ना, फिर क्यों फेल हो गई? क्या वजह है? कहीं गलत संगति का असर तो नहीं? लाइफ में फेल हो जाना या एग्जाम में फेलियर बनना ना समझे या गलत संगति का कारण नहीं है, कई बार दूसरे कारण भी होते हैं। पर क्यों? और क्या कारण हो सकता है? कई बार फेल होने का कारण अनजाने में माँ बाप भी बन जाते हैं। पर माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। सही कहा, माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर कई बार तरीका गलत होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर बच्चों को समझने वाले और समझाने वाले माँ बाप की जरूरत है। पर क्यों? तरीके से क्या फर्क पड़ता है? चल मैं तुझे बता दूं कि तरीके से क्या फर्क पड़ता है। पापा, मेरा रिजल्ट। ये क्या है? इतना खराब रिजल्ट। ये क्या है? तू फेल हो गई? टॉपर हेतांशी फेल हो गई? अब क्या कहेगी लोग? नाक कटवानी तूने हमारी। पर मम्मी, मैं सिर्फ मैथ्स में तो फेल हुई हूँ और मुझे आगे जाके आर्ट्स ही तो लेना है। क्या आर्ट्स? कोई आर्ट्स वार्ट्स है ना, तू सिर्फ और सिर्फ साइंस लोगी। मैं मेरे दोस्त को क्या कहूँगा? मेरी बेटी आर्ट्स में पढ़ती है। पापा, मुझसे नहीं होगा साइंस, मुझे आर्ट्स ही लेना है। मेरी रुचि आर्ट्स में है, मैं आर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती हूँ। नहीं, तू साइंस लेगी, इंजीनियर बनेगी, बस बात खत्म। पर मम्मी, और आज से तेरे 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवा दूंगा 10th के एडवांस में। और आज से कोई जरूरत नहीं फालतू की एक्टिविटीज करने की। और आज से तेरा फोन देखना बंद। 10th आने वाले तेरा 1 मिनट बिना बिगड़ सिर्फ पढ़ेगी। क्यों? अभी तो मेरे वैकेशन है ना। कोई वैकेशन नहीं है तेरे, तू सिर्फ पढ़ाई करेगी। पढ़ना ही सब कुछ है, बाकी की सब एक्टिविटीज फालतू है, कुछ नहीं है इनमें। पर
और आज से तेरी सारी ट्रिप्स भी कैंसिल, कहीं नहीं जाना, घर बैठो और पढ़ो। तेरे चाचा की बेटी देख कितना पढ़ती है। और तुम सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तू पढ़ने बैठ। तो रिजल्ट के बाद ये हुआ हेतन जी के साथ। ये तो होना ही था, मैथ्स में फेल हुई है। पर तो मुझे कुछ तरीके वाली बात बताने वाली थी। हाँ हाँ, आगे आगे देख होता है क्या, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि रिया के साथ क्या हुआ। रिया, यहाँ बेटा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा इतना खराब रिजल्ट आया। हमेशा तो अच्छा आता है, क्यों पढ़ाई नहीं हो रही तुमसे? तू पूरा दिन बस फोन देखती रहती है और दोस्तों के साथ घूमती है रिया। माना वो सब भी जरूरी है, पर पढ़ाई ज्यादा। आई बात समझ में? हाँ पापा। इसका चेहरा देखा आपने? कुछ तो हुआ है, हमें इससे जाके बात करनी चाहिए। हाँ, पूछना चाहिए, कभी बच्चों को शांति से समझाना चाहिए। रिया बेटा यहाँ आओ। बेटा, आज हमने तुम्हें खराब रिजल्ट की वजह से डांट तो लिया, पर वजह क्या है खराब रिजल्ट की? हाँ रिया, इस बार इतना खराब रिजल्ट कैसे आ गया? एक्चुअली तब मेरे लाठी का कंपटीशन होने वाला था और मैं उसकी तैयारी में कुछ ज्यादा ही लगी हुई थी। उसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं पाई। सॉरी मम्मी पापा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा और मैं अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है बेटा, आपसे ध्यान रखना। क्या करें इसका? ऐसे तो कैसे पढ़ेगी ये लाठी और अदर एक्टिविटीज को बंद करवा दे। नहीं, ऐसा करने से बच्चा दुखी हो जाएगा, ना पढ़ पाएगी ना और कुछ कर पाएगी। तो फिर और क्या करें? एक काम करते हैं, ये जो 3-4 घंटे की लाठी क्लासेस है उसको 2 घंटे का कर देते हैं और बाकी सारे एक्टिविटीज का भी टाइम मैनेज करवाते हैं। हाँ, बैलेंस तो करना पड़ेगा, तुम इससे बेहतरीन बात करना। ठीक है। तो देखा तूने, दोनों परिवार में एक ही बात चल रही है, फिर भी कितना अंतर है। हाँ, दोनों के परिवारों का समझाने का तरीका अलग था, पर इससे क्या, तरीका तो कोई भी हो, फर्क क्या पड़ता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि आगे हेतांशी और रिया के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, तो क्या हुआ आगे? ये वैकेशन का टाइम चल रहा है। हेतांशी अपनी सारी हॉबीज छोड़कर 2 दिन ट्यूशन जाती है, थकी हुई घर आती है और घर आते ही वापस बिना मन के पढ़ने बैठ जाती है। अरे बेचारे का वैकेशन भी बेकार जा रहा है, पर एक बात अच्छी है, पढ़ तो रही है। पढ़ तो रही है, पर बिना मन के। उसकी मम्मी को लगता था कि वो पढ़ रही है, पर वो चुप चुप कर फोन चलाती थी और बिना परमिशन से सोशल मीडिया से भी जुड़ी हुई थी। मम्मी, मैं ट्यूशन जाकर आती हूँ। हाय तांची, क्या चल रहा है? हाय ब्रो, कुछ नहीं, बस एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आई हूँ। अरे पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी, हम देख हम सीनियर है फिर भी काम करते हैं। देख भाई, पहले से मेरी सारी एक्टिविटीज बंद हो चुकी है, छुप छुप के फोन चलाती हूँ और अगर मेरे 10th में कम मार्क्स आए तो मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा चल, कोई नहीं, छोड़, हम लोग कल गाँव में जाए, तो आइए हमारे साथ। नहीं नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता किसी ने देख लिया तो? अरे हम अपनी मर्जी के बादशाह है। हाँ, मजा आएगा और तो तेरा मूवी फ्रेश हो जाएगा। चल ठीक है, देखते हैं कल। तो हाँ सुन, हाँ? कल जल्दी आना, टाइम से पहले, भूलना मत। ठीक है। नेक्स्ट डे। कितनी देर कर दी तुम लोगों ने? अरे चिल ब्रो, इतना डर क्यों रही है? भाई माल निकाल। अरे वाह, चॉकलेट्स मुझे भी दो। ये चाहिए मुझे? हाँ। अरे ये चॉकलेट्स नहीं है, तो क्या है ये?
ये नशीला पदार्थ है। नशा है, नशा। क्या नशा? धीरे बोलो, किसी को पता नहीं चला जाए कि हम इसका सप्लाई करते हैं। और तुम ये सब क्यों करते हो? अरे इससे पैसे मिलते हैं और पैसा ही पैसा हो जाता है। तू करेगी सप्लाई? करना है तेरे को? नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। क्या पैसों की जरूरत नहीं है? अच्छा ये बता, तू अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती है, तो अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकती है, तो फिर नहीं, मैं कुछ जिसके नहीं कर पास सकती। पैसा होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है। जो तू अभी नहीं कर पा रही, वो भी तो कर पाएगी। सोच जरा। हाँ, तो हमारे साथ जुड़ जा, तुझे भी पैसे मिलेंगे और उससे तू अपना नया फोन भी खरीद लेना। ठीक है, कल देखते हैं, कल बताती हूँ। अच्छा सुन, दे ही दो। ठीक है, तब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो देखा तूने रीतांशी के साथ क्या चल रहा है? हाँ, मतलब 2-3 ट्यूशन के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। चल तो रहा है, पर उसमें रीतांशी की क्या गलती? उसको पता ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। क्यों, इतना नहीं पता उसे? कैसे पता होगा? उसकी अपने माँ बाप से कभी बात ही नहीं होती। अगर होती भी तो सिर्फ पढ़ाई की। उसे ये सब जानने का मौका ही नहीं मिला कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाय रिया, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी मस्त हूँ। अच्छा तुझे एक बात बताऊँ? हाँ बोल। पर तू किसी को बताना मत, ठीक है? हाँ बोल बोल। देख 5,000 रुपए। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हम तो खुश हो गए ना तुझपे। नहीं, ये मेरी कमाई के पैसे, कमाई के। कमाई? कैसी कमाई? तू बताना मत किसी को, ठीक है ना? हाँ बोल। माल बेचने की कमाई। माल? माल? हाँ। कैसा माल? नशीले पदार्थों का माल। नशीले पदार्थ? तुझे पता भी है ये सब नहीं करना चाहिए, ये गुनाह है, गुनाह। अरे तो चिंता मत कर यार, कुछ नहीं होता है। छोड़, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। यार सुन तो सही, रुक तो सही। क्या है? फोन थोड़ा बाहर निकाल दे। मेरी बात सुन तो सही। नहीं करना मुझे तुझसे कुछ बात। क्या पता अगर तू इसको कंज्यूम करने लगी तो, और इससे तेरी सोचने की क्षमता भी कम हो सकती है, तेरी तबीयत भी बिगड़ सकती है। ये सब नहीं करना चाहिए, तो इससे जेल भी जा सकती है। मुझे लगता है तेरी बात सही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शुक्रिया रिया। ठीक है चल। मम्मा, मैं आ गई। आ गई? कैसी रही आने की क्लासेस? अच्छी रही। मैं हेतांशी और ध्रुव भैया से भी मिल के आई। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, मैं ना बाहर जा रही हूँ, तो तुम थोड़ी देर आराम कर लेना और फिर ना पढ़ने बैठ जाना, ठीक है? ठीक है। अब पता चला तरीके से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अब मैं समझा कि इस उम्र में बच्चों को सही तरीके से समझाने वाले चाहिए। बिल्कुल सही। ये तो हमने देखा कि कैसे दो परिवारों ने एक ही बात को अलग अलग तरीके से संभाला। एक परिवार ने उम्र की तकदीर को समझा और दूसरे ने नहीं। वो कहते हैं ना, जब बाप का जूता बेटे को हो जाए तब बेटे को मित्र समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके पास कोई एक ही हाथ पकड़ने वाला होता है, जिनके पास माँ और बाप दोनों का साया किस्मत में नहीं होता। यानी जिस बच्चे के पास सिर्फ माँ होती है, सिर्फ बाप होता है। हाँ, जिनके पास दोनों में से कोई एक ही होता है।
अरे ये क्या हुआ? साहब पता नहीं क्यों मेरी उदास बैठा है और मुझसे भी सारी चीजें देख रहा है। ठीक है, अब आप जाओ, मैं उसे संभाल रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारे अकाउंट में सैलरी भी भेज दी है। जी। क्या हुआ बेटा विनीत, क्यों उदास हो तुम? कुछ नहीं पापा, मम्मा की याद आ रही है। अरे बेटा, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, आज तो तुम्हारा बर्थडे। देखो आज मैं ऑफिस से इसलिए तुम्हारे लिए जल्दी आ गया। और तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ है? तुमने उन्हें इनवाइट नहीं किया? नहीं। क्यों? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुमने अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन कार्ड नहीं दिए। नहीं मना मुझे बोले, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। अरे बेटा, मैं हूँ ना आपके साथ। चलो अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूँ। हेलो, हाँ बस मैं आया 5 मिनट में। देखो बेटा विनीत, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में आशीष अंकल से मिलके। कहाँ है भाई? आया। और कैसा है भाई? कुछ नहीं भाई, मैं अच्छा, तू बोल तू कैसा है? मैं मस्त। क्यों तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं भाई, आज बर्थडे है विनीत का। अरे वाह, मेरी तरफ से विश करना। पर ये तो अच्छी बात है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बर्थडे तो है पर क्या? विनीत का बर्थडे है, उसके साथ एंजॉय कर, उसके फ्रेंड्स के साथ भेज उसको पार्टी के लिए। बर्थडे तो है पर मैं नहीं कर सका। क्यों, क्या हुआ? ये बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रहा है? हुआ क्या है? पूरी बात बता। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं विनीत को उसकी माँ की कमी एहसास ना होने दूं, पर मैं नहीं कर सकता। मैं उसका भविष्य संवारने में इतना खो गया कि मैं उसकी आज की कमी पूरी ना कर सका। हुआ क्या है? सही से पूरी बात बता। मैंने विनीत को अच्छी से अच्छी स्कूल में रखा ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। मैंने उसके लिए केयर टेकर रखी जो मेरे पीछे उसका ध्यान रख सके। पर वो इन सबके बीच किताबों में इतना खो गया कि इसे किताबों के सिवाय कुछ पता ही नहीं। ना वो किसी से बात करता है, ना वो किसी एक्टिविटी में पार्ट लेता है। वो बहुत शांत हो गया। अगर आज उसकी माँ यहाँ पे होती तो ऐसा ना होता। देख, भाभी नहीं है तो उनकी कमी केयर टेकर तो पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि माँ की ममता तो सिर्फ माँ के आंचल में ही होती है। और अगर माँ नहीं है तो उनकी कमी पूरी करने की जिम्मेदारी तेरी है, और तेरे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। तेरी टेंशन भी सही है और तेरी सोच भी सही है कि उसका भविष्य ना बिगड़े, इसलिए तू ज्यादा मेहनत करता है, पर उसका कल सुधारने के चक्कर में तू उसका आज मत बिगाड़। तो क्या करूं मैं? नहीं निभा पा रहा माँ और बाप दोनों का किरदार। देख, मैं समझ रहा हूँ, माँ बाप दोनों का प्यार देना मुश्किल है, पर असंभव नहीं। मुझे विश्वास है तू कर पाएगा, और इसके लिए मेरे पास एक उपाय भी है। देख, विनीत के पास उसकी माँ नहीं है, पर तेरे पास तो है ना। मतलब विनीत की दादी। तू उनको गांव से बुला ले, क्योंकि जो बच्चा दादा दादी की साय में पलता है वो बच्चे की बात ही अलग होती है, और वो विनीत को उसकी माँ की याद भी नहीं आने देंगे। हाँ, ये तूने सही कहा। माँ विनीत को अपने जान से भी ज्यादा प्यार देगी, और वो पढ़ाई के साथ साथ दुनिया को भी समझेगा। कुछ सालों बाद हाय रिया, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। और वो विनीत नहीं आया आज? नहीं, वो पहले से इंट्रोवर्ट है, पहले भी नहीं आता था, आज भी नहीं आया। अच्छा। हाँ रिया, मुझे तुझसे बहुत सालों से एक बात कहनी थी। क्या बोल? मुझे पता है मैं बहुत सालों पहले नशीली पदार्थों को बेचने लग गई थी, जब तूने मुझे समझाया था कि सब नहीं करना चाहिए, ये गुनाह है। हाँ, उसके लिए शुक्रिया यार, तेरी वजह से मेरा भविष्य सुधर गया। अरे वो तो मेरा फर्ज था। और बता, और क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? मस्त। मैं हितांशी, आज मैं एक इंजीनियर हूँ, कामयाब और इज्जतदार और पैसेदार इंसान भी हूँ। पर वो कहते हैं ना, लोगों को खुश रखने के चक्कर में खुद की खुशियों की खुद खुशी हो जाती है। बस मेरे साथ भी कुछ यूं ही हुआ था। मेरी रुचि आर्ट्स में थी, मैं लेना चाहती थी आर्ट्स, पर मेरे माँ बाप के कहने पे मैंने साइंस लेके इंजीनियर कर लिया। मैं आज कामयाब तो बहुत हूँ, पर कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं रिया, मैं आज मेरे जीवन की बात बताना चाहती हूँ। मैं सेल्फ डिफेंस के क्लासेस चलाती हूँ,
और मैं नेशनल लाठी कंपटीशन में बहुत सारे मेडल्स भी जीती हूँ। और इस सब का श्रेय जाता है मेरे माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अपने पढ़ाई को और अपनी कला को मैनेज करना चाहिए। थैंक यू मम्मी पापा। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज इतनी नहीं बिगड़ जाती जिसे समय के साथ सुधारा ना जा सके। तो देखा आप लोगों ने ये तीनों अपनी जिंदगी के इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि मेरा बच्चा जिंदगी में सफल हो और बहुत खुश रहे, और यही हुआ। तीनों विनीत, हितांशी और रिया अपनी अपनी जिंदगी में सफल है। पर कमी तो आ रह गई कि तीनों खुश है ऐसा नहीं है। हितांशी खुश नहीं है, रिया और विनीत अपनी अपनी जिंदगी में सफल है और खुश भी है, पर हितांशी सफल होने के बाद भी खुश नहीं है। हमने देखा कि कैसे वो आर्ट्स लेना चाहती थी, पर समाज में स्टेटस बनाने के लिए माँ बाप ने जबरदस्ती साइंस दिलवा दी। वो साइंस में आगे भी बढ़ी, वो साइंस में सफल भी हुई। पर कहते हैं ना, खुशी तो वही है जहाँ रुचि है, और हितांशी की रुचि आर्ट्स में थी। आर्ट्स भी महत्वपूर्ण है, आर्ट्स भी जरूरी है, ये उसके माँ बाप समझ ना सके। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे ये नाटक की क्या जरूरत थी। हम पूछते हैं क्यों जरूरत नहीं थी। क्या हमें ये सोशल मीडिया एडिक्शन, ये नशीली पदार्थों के एडिक्शन से आजादी की जरूरत नहीं है? क्या बच्चों को अपना भविष्य खुद चुनने की आजादी देना जरूरी नहीं है? है। इसीलिए आज हमारे नाटक, जिसका नाम है तरीका, समाज के लिए एक नई पहल, इससे हमने बताना चाहा है कि हर गलत चीज से आजादी जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या अद्भुत नाटक था। यह नाटक हमें सिखाता है कि हमें अपनी आजादी मांगने का पूरा हक है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना, जिम्मेदारियां लेना और परिणाम जो भी हो उसे स्वीकारना हमें आना चाहिए। Now I will invite Riyan Talwadi, Arya Patel and Naksh Jani from Tripta Day School to perform a patriotic melody on keyboard. Tripta English School, sorry. Dalwadi, Standard 3rd A, Tripta English School. I will sing patriotic message with keyboard.
पृथ्वी। Thank you so much. It was very melodious. Now I will invite our respected Archit sir to share a few words of wisdom with us.
70th Independence Day. We feel proud about it. Each year we celebrate in presence of some or the other invitee. This year we have my mentor, Shri Praful Bhai Seth. He keeps on mentoring me on certain ideas, on certain new improvisation. He is an IMC pass out, very senior person. And Lions Club of Manav Mandir, of course, my uncle Shri Harshvardhan Choksey and the team. There are two aspects. One is a professional, one is a personal. So Praful Bhai has come as a professional mentor and Harshvardhan uncle is a personal mentor. This year I found out something new. बच्चों ने जो परफॉर्म किया, बोल्डली ये बात की, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हर रोज या तो अबेंडन किया हुआ पार्सल मिलेगा जिसमें कोई प्रकार का ड्रग्स होगा, हर रोज कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के ड्रग्स कहीं ना कहीं मिलते हैं। कल के न्यूज़पेपर में वलसाड़ में थे। आप सोचो, हम 78 इंडिपेंडेंस डे के दिन अगर आंख बंद करके ये सोचते हैं तो हम अपने देश को कहां लेके जाते हैं। 100 ग्राम के लिए हम गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मिस करते हैं। 100 ग्राम, हमारे बच्चे को अब तक तो ये पता था कि 2 मार्क के लिए आप मेडिकल की सीट चली जाएगी, अब तो 100 ग्राम के लिए गोल्ड चला गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम टोक्यो में 7 मेडल्स लेके आए थे और इस बार 6। हम गर्व महसूस करते हैं। हम आज भी हमारे इतिहास पे हम रानी लक्ष्मीबाई को बात करते हैं, पर इनमें से किसी ने रानी लक्ष्मीबाई को देखा नहीं। पर हमने हमारे आज के इतिहास में, आज के दिन के जो रानी लक्ष्मीबाई है वो कौन है? आज के ये जो टीचर्स हैं, क्योंकि हर सेकेंड, हर पल इनके लिए चैलेंज है घर में, क्योंकि वो माँ भी है, वो किसी की बहू है और यहाँ पे टीचर है। अब वो रोल तो हमें कहीं ना कहीं 100% एक्यूरेसी के साथ करना पड़ता है। अगर बाप है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट में एक बाप को दिखाया, एक लाचार बाप को, कि क्या करूं मैं, मेरा बच्चा जो है, पर वो जो बाप था वो भूल गया कि उसकी भी माँ है ना? तो माँ होती है। भूल गया ना? क्यों भूल गया? क्योंकि हम लोग सब न्यूक्लियर, हम लोग सबको इंडिपेंडेंस ही चाहिए। 70th इंडिपेंडेंस के दिन मैं बात कर रहा हूं, हम सबको इंडिपेंडेंस ही चाहिए। किस चीज की? सोच की, यहां वहां कहीं पे भी खुले में पेशाब करने की, करप्शन करने की? कौन सी इंडिपेंडेंसी चाहिए? हम सबको इंडिपेंडेंसी चाहिए, पर ये सोचने वाली बात है कि इंडिपेंडेंसी क्या होती है। स्वतंत्रता जब मिलती है तो उसके साथ जवाबदारी, जिम्मेदारी आती है, पर हम उस चीज को नहीं पढ़ाते हैं, ना स्कूल में पढ़ाते हैं। हम बच्चों को फेलियर तो कतई नहीं सिखाते हैं। स्कूल में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो टीचर बोलती है डफोड़ है, माँ बाप कहे कि तने आटलू पण नहीं आवड़तुं, અને એટલા માટે इसीलिए बिकॉज ऑफ इट मैं तीनों दिन भाषा में प्रेशराइज करके बोलता हूं, आज डमी स्कूल्स है और ट्यूशन क्लासेस है। किसका ट्यूशन लेना है? केजी से शुरू करते हैं, किसका ट्यूशन लेना है? व्हाट फॉर? मुझे याद है कि अगर मैं ट्यूशन में जाता था तो मैं मेरे फेलो स्टूडेंट्स, सहपाठी जिसको बोलते हैं, उससे बचा के जाता था कि मुझे लगे मैं वीक हूं, ये मुझे नहीं बताना था। और आज फैशन स्टेटमेंट है, व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो। किस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए,
यहाँ बताया गया कि किसी लड़की को आर्ट्स लेना था। ये मेरे जीवन की कहीं से इन्होंने कड़ी ली है, इसने ये बदमाशी की है मुझे नहीं पता, पर इंजीनियर बनने से मुझे नुकसान नहीं है। ये मेरे जीवन की कहीं ना कहीं बात चल रही थी। दादाजी ने मुझे आर्ट्स में नहीं जाने दिया और इंजीनियरिंग करवाया, बट उस इंजीनियरिंग की वजह से मुझे ये पता चला कि देयर इज अ थर्ड डायमेंशन इन एजुकेशन। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को स्कूल में आना पड़े, हमारे स्कूल में उसका पूरा एक सेशन लेना पड़े। आप सोचो, हम 78 इंडिपेंडेंस में हम कौन सी साइड जा रहे हैं? हाँ, माँ बाप जो है घड़ा घर बन रहे हैं, ओल्ड एज होम बन रहे हैं, प्राउडली बोलते हैं कि भाई मेरे माँ बाप जो है 5 स्टार ओल्ड एज होम में है। आई मीन कौन सा 5 स्टार ओल्ड एज होम भाई? And we feel that we are all becoming independent. Independent of what? We all need to. I am not answering anything. I might be wrong. पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम अपने सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं? क्रेडिट कार्ड, क्या बचत? मुझे इतना याद है कि पहले के जमाने में, पहले नहीं 5 साल पहले, अगर आप एक कॉमन मैन के वहां जाएंगे तो उनके जो चीनी का डिब्बा होता है उसमें से 500 रुपया निकलेगा, चाय का डिब्बा होगा तो उसके अंदर 1000 रुपया निकलेगा, गेहूं की जो बड़ी सी ये होती है जिसमें हम स्टोरेज करते हैं कुछ पूरे साल का, इस चीज को क्या बोलते हैं पता है? ये पूरे भारतवर्ष में चलता है, चाहे आप साउथ में जाओ, चाहे आप नॉर्थ में जाओ या वेस्ट में जाओ या ईस्ट में जाओ। ये है इंडियन नॉलेज सिस्टम। और ये इंडियन नॉलेज सिस्टम हमने पूरी तरह नष्ट करने का सोच लिया है। हाँ या ना? हाँ, अगर सर्दी होती है तो माँ क्या बोलती है? क्या बोलती है? अदरक, नींबू और तुलसी वाला काढ़ा पी ले गरम करके। अब ये अगर यहां से सदर्न पार्ट में जाओगे तो यही बोला जाता है, नदन पार्ट में जाओगे तो यही बोला जाता है। तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है हम पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। फायदा किसको है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। गोली इतनी होती है पर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो तो मिलीमीटर में भी, उससे भी छोटे उसमें होता है। और सारी हमने बोल दिया कि अब से ब्रांडेड गोलियां नहीं लेंगे, हम कौन सी गोली लेंगे? जेनरिक गोली लेंगे। और गोली क्यों लेंगे? हमारे वो सोच ही नहीं है कि मेडिसिन, आई मीन प्रिवेंशन बिफोर मेडिसिन। पहले हुआ करता था, सूट की गोलियां हो गया करती थी, अरे आप पहाड़ों में जा रहे हैं सूट की गोली लेके जाओ, तो सूट की गोली लेके क्यों जाते थे? बदन के अंदर गर्माहट रहे। आज क्या बोलते हैं? अरे थम्स अप। हम बच्चों को लेके जाते हैं, जब मेरे को फीडबैक देते हैं टीचर, बोले आज सारा जो जितने भी वेंडर्स आए ना रेलवे में, सबकी थम्स अप खाली कर दी। बहादुरी। अरे भाई थम्स अप में आता क्या है? और मुफ्त में हमने इस चीज को, मैं कई बार जब क्लासरूम में जाता हूं तो आप तक पेरेंट मेरे पास नहीं आए, पहले आते थे कि सर मारा छोकरा है ने કોઈનો સંચો લઈને આવ્યો છે, કંઈક અલગ જ પ્રકારનો સંચો છે। એટલે આજે તો મા બાપ શું કહે, રાખ તારી પાસે, હું નહીં અપાઈ શકું। Now that value system, and we are all proud of our 78 सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया का मतलब क्या? हर घर में सोना रहता था? नो, देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया बिफोर। जब सोने की चिड़िया थी तो सोने की चिड़िया का मतलब ये था कि एम्प्लॉयमेंट हर घर में था। कोई बच्चा या कोई बूढ़ा या कोई भारतवर्ष में कोई भी आदमी या इंसान तब मुफ्त की रोटी नहीं खाता था, इसलिए वो सोने की चिड़िया थी। तब पड़ी हुई चीज रास्ते पे भी होती थी तो उसको कोई छूता नहीं था, इसलिए वो सोने की चिड़िया थी। हम सोने की चिड़िया का मतलब ये मानते हैं कि ये सही में पिलर्स जो है, डोर्स एंड विंडोज जो है, घर के अंदर पूरे वॉलपेपर जो है, नहीं। सोने की चिड़िया जो है वो एक हमारे भारतवर्ष को दी गई एक क्या बोलते हैं उसको, एफर्मेटिव स्टेटमेंट है
कि हमारे भारतवर्ष के अंदर कोई चीज गंदगी नहीं हुआ करती थी, ओपन ड्रेनेज होने के बावजूद। और आज कॉलेरा जो निस्त नाबूद हो गया, ऐसा हमारे भारत के मेडिकल एसोसिएशन बोलते थे। न्यूज़पेपर में आ रहा है कि इस एरिया में 27% कॉलेरा के केसेस है। लुक एट दिस, आर वी डेवलपिंग दिस कंट्री और आर वी नॉट? हमें कहीं ना कहीं इस चीज को क्लासरूम में लाना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं इस चीज को स्कूल्स में लाना पड़ेगा, हैबिट में लाना पड़ेगा। रॉन्ग साइड आते हैं, हम चिल्लाते हैं, अरे खबर नहीं पड़ती, ऊँधो आवे थे। पर जब हमें मौका मिलता है तो हम भी क्या करते हैं, उल्टा जाते हैं। तो कोई और भी तो आप पे चिल्लाता होगा। सो लुकिंग एट दिस ऑल सिनेरियो, my only person is that, and that person who needs to understand, do you want to make it a सोने की चिड़िया tomorrow? तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ शुड बी फॉलोड। इतना बारिश होने के बावजूद भी अभी क्या लग रहा है, शांति से बैठ नहीं पा रहे ना, यहाँ पे पसीना हो रहा है, भाप हो रहा है। क्यों? खाली पेड़ को लगाने से क्लाइमेट चेंज नहीं होगी, उसकी मुआवजत करके उस पेड़ के पूरे इकोसिस्टम को बदलना होगा, इकोलॉजी को बदलना होगा। और वो बदलने के लिए कहीं ना कहीं वी विल हैव टू मेक एफर्ट्स। अगर वापस किसी ने हम पे रूल करना शुरू किया और रेलवे लाइन डाल दी, और 78 ईयर्स में हमने नई रेलवे लाइन कितनी डाली, इसका मतलब आवर इंडिपेंडेंस इज इन ए वेरी, जो ब्रिटिशर्स रेलवे लाइन को डाल के गए उसके बाद कितनी किलोमीटर की रेलवे लाइन लगाई गई, अगर उसका आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड दैट इन 78 ईयर्स जितने किलोमीटर की रेलवे लाइन वो लोग लगा के गए, हमने आज तक नहीं लगाई। ये डेटा है, आई एम टॉकिंग अबाउट विच यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। आज हम ये बात कर रहे हैं कि महिला समकक्ष भारतवर्ष ની અંદર ક્યારે મહિલા સમકક્ષ નહોતી, they were always above the society। इसलिए हमारे वहां हर जगह नवरात्रा जब करते हैं, पूजा करते हैं, तो दुर्गा की पूजा करते हैं, नव माता जी की पूजा करते हैं। हमारे हर घर के अंदर देवियों की पूजा होती है, क्योंकि वो हमेशा हमारे से ऊपर है। और हम आज क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी। व्हाट इज बाय इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ वुमेन। इक्वालिटी ऑफ वुमेन नहीं चाहिए हमें, इंडिपेंडेंसी ऑफ वुमेन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। वी हैव टू ऐड वन थिंग, वी नीड टू हैव इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल इंडिया। आर वी रिस्पॉन्सिबल? वी आर इंडिपेंडेंट बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। द डे वी विल बी रिस्पॉन्सिबल, हमें ये बोलना नहीं पड़ेगा कि सोने की चिड़िया थी, हमें समझ में आ जाएगा कि ये सोने की चिड़िया है। होप यू अंडरस्टैंड। छोटे बच्चे, आज नहीं तो कल ये आपके हाथ में सुकून आने वाला है, सुकून आने वाला है कि आप इसको सोने की चिड़िया बनाओ। टीचर सबसे ज्यादा आज है, आई गेट वेरी लेस टाइम टू टॉक टू यू बिकॉज यू आर ऑल वेरी बिजी, राइट, with very less incentives in the schools, with the fee regulation and the society talking about अरे मेहता हमको रखवाना, ट्यूशन क्लास मत बढ़ावाना। So I fear tomorrow schools might not be there. Tuition class might be only the source of income. They are not regulated. And each and every parent without understanding the need of a child, क्योंकि बाजू वाला भेजता है मुझे भेजना है, क्योंकि बाजू वाला ने यहाँ पे विमल्डन में भेजा है तो मुझे भी उसको भेजना है, चाहे बच्चे को विमल्डन समझ में आता है या स्विमिंग समझ में। वी नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आवर चाइल्ड। किसी ने कहा है, मैं बार बार कहता हूं, बाळको आपड़ा थकी है, મા બાપ થકી બાળકો ખરા, પણ એ બાળકો એના પોતાના શું નથી, શું નથી, બોલો તો ખરા,
બાળકો પોતાના નથી ખરા, પણ બાળકો પોતાના ઇજારા નથી. They are not their right. They are their responsibility. Parenting is a responsibility. Parenting is not just an entertainment. I am talking a very big statement. To become a parent, we should be responsible. અને આપણું આ ભારત છે જ્યાં અભિમન્યુએ સાપ ઉઠા અને માં સૂઈ ગઈ એટલે એનું મૃત્યુ. બાકી જો માં સૂતી ના હોત ને તો એ કોઠા વિંદીને બહાર આવવાની કળા એની પાસે હોત. તમે વિચાર કરો, આપણે એવું માની ચાલીએ કે માઇથોલોજી છે. ભારત વર્ષમાં બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે કે હિન્દુની જેટલી પણ પુસ્તકો છે, જેટલી સાહિત્ય છે, બધી માઇથોલોજી છે. અને છતાંય આપણે કહીએ છીએ કે અહીંયા રામ મંદિર હતું, અહીંયા રામ હતા અને દિવાળી મનાવીએ છીએ, પણ બધી જ આપણી ચોપડે માઇથોલોજી. ધીસ ઇઝ વોટ ધ ફેક્ટ ઇઝ, ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ અ માઇથોલોજી. તો વિચાર કરો, સાયન્સ પ્રૂવ કરે છે અત્યારે કે વૂમમાં, ઉદરની અંદર જ્યારે બાળક હોય તો એને શીખવાડી શકે. તો માં સૂઈ ગઈ હશે એ સત્ય હોઈ શકે ને. બસ આટલી જ વાત સાથે હું આજની મારી વાતને વિરમું છું કે માતાઓ અને પિતાઓની જવાબદારી એવી છે કે જે આવનારી ભારતની સોનેરી ચીડિયા બનાવી શકે. સો આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ જોરથી એકવાર વંદે વંદે ભારત માતા કી. गुरु आपकी यह अमृतवाणी हमेशा मुझको याद रहे. जो अच्छा है, जो बुरा है, उसकी हम पहचान करें. मार्ग मिले चाहे जैसा भी, उसका हम सम्मान करें. दीप जले या अंगारे, हो पाठ तुम्हारा याद रहे. अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करें, गुरु आपकी यह अमृतवाणी हमेशा मुझको याद रहे. हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Now I would like to call Darshini, Shweta and Gauri to sing "ऐ मेरे वतन के लोगों" in Sanskrit.
Thank you so much. It was beautiful. Now, I would request our guest of honor, Shri Harshvardhan Choksi, to say a few words. Respected Achit Bhai, respected guest Mr. Saraswat sir, and class of members, students, their parents, and invitees. It's my great pleasure to thank you all, and I particularly thank Achit Bhai to give me this opportunity to in your school for us, and we are very happy to meet all these guests of honor. Students, हिंदी में बोलीश અને ગુજરાતીમાં હું બોલીશ. અચિતભાઈએ હમણાં જ આપણને બહુ સારા મેસેજ આપ્યો અને વાલીઓ પણ અત્યારે હાજર છે. તો ખાસ અચિતભાઈના એક શબ્દનો તમે અનુભવ વિચારજો અને તેઓએ જે કંઈ કહ્યું એ એમની પોતાના દિલની વ્યથા છે આપના બાળકો માટે. તેઓને ખાસ આ સ્કૂલમાં હું લગભગ 30 વર્ષથી અચિતભાઈના ફાધર અમારા ખાસ મેન્ટર, મારા મિત્ર, અને અમે બહુ સાથે લાયન્સમાં પણ કામ કરેલું હતું અને એક અંગત મિત્ર તરીકે પણ કામ કરેલું હતું. એટલે હું આખા એમના ફેમિલીની વ્યવસ્થિત જાણું છું અને જે કામ એ હાથમાં લે તો એ સારી રીતે પૂર્ણ થાય એ પ્રમાણે ક્વોન્ટિટી નહીં ક્વોલિટી જોઈએ એમને. અને આપને પણ આપને અનુભવ હશે. તો આપણે હવેના આપણું જે જનરેશન છે, નેક્સ્ટ જનરેશન, તેઓને આપણે સારી રીતે સારા સંસ્કાર આપીને જઈશું તો તેઓના આગળના 50 વર્ષ સુધી આપનું નામ રોશન કરશે. આપણે એટલા માટે જ આપણે જે પ્રવૃત્તિ કરો છો સ્કૂલમાં જે વધારાની છે, અને એક બીજું બી એમને ખાસ કહ્યું કે ટ્યુશન કરતાં જે સ્કૂલમાં જે જ્ઞાન મળે છે એ ઘણું અગત્યનું હોય છે. તો આપણે પણ છોકરાઓને એ રીતે ટ્રેન કરીશું તો એ સારા નાગરિક બની જશે અને આપણા દેશની પણ સારી સેવા કરી શકશે. બધાને નહીં કહેતા અચિતભાઈએ અમને બોલાવીને જે તક આપી બોલવાની એ બધા, અને આપણે સૌ શાંતિથી સાંભળ્યું એ બધા થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. थैंक यू. अब मैं हमारे माननीय अतिथि श्री प्रफुल्ल शेठ को इस स्वतंत्रता के पर्व पर कुछ शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ. श्री अचित भाई, आचार्यगण, विद्यार्थियों, मैं અહીંયા આવતા પહેલા અમુક વસ્તુ કહેવાનું નક્કી કર્યું હતું, પણ અચિતભાઈના સાંભળી મેં બદલી નાખ્યો મારો વિષય. અચિતભાઈએ જે આપણને કહ્યું કે દરેક જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ છે, સોલ્યુશન નથી. પેરેન્ટ્સ, ચિલ્ડ્રન બધામાં પ્રોબ્લેમ છે. મને લોકો મારી લાંબી જીવનમાં એક વિશનરી તરીકે જાણે છે. એટલે અત્યારે પણ આઈ એમ વિઝ્યુઅલાઇઝિંગ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન 10-20 years hence. લોકો મને ઘણી વખત આવું એટલે કે શું નવું લાવ્યા, પણ એ મારો નેચર થઈ ગયો છે કે કંઈ નવું હંમેશા શોધવાનો પ્રયત્ન કરું. એ ઉપર મને 2 કે 3 મેઇન પ્રશ્ન છે. એક, there is a concept self-directed learning. માણસ પોતાની જાતે શીખવાનું શરૂ કરે. હું વિઝ્યુઅલાઇઝ કરું છું કે 10 વર્ષની અંદર
આ કન્સેપ્ટ, આ સોસાયટી, આ ટાઈપની સોસાયટી ઉત્પન્ન થશે. સેકન્ડલી, આપણી જે સ્કૂલની આખી મેથોડોલોજી છે એ જ હું ક્વેશ્ચન કરું છું. અત્યારે ઇન્ફોર્મેશનનો એ છે, તમારે જે પણ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય એ તમને ગૂગલ પર મળી, પણ આપણે જે સમય ક્લાસીસમાં જે સ્પેન્ડ કરીએ છીએ એ ઇન્ફોર્મેશન રિપીટ કરવા માટે કરીએ છીએ. એના કરતાં જો આપણે બાળકને સેલ્ફ ડાયરેક્ટેડ લર્નિંગ તરફ વાળી શકીએ, પેરેન્ટ્સને એ ટાઈપનું એન્વાયરમેન્ટ ફેમિલીમાં બનાવી એ કરી શકીએ, તો આઈ થિંક અજીતભાઈના પ્રશ્નનો ઉકેલ આવી શકે. આ બહુ થોટ પ્રોવોકિંગ છે, બહુ ક્વેશ્ચનેબલ અને પ્રોબ્લેમેટિક છે, હું એગ્રી કરું છું, પણ આપણે એ ઢાંચામાં જવા માટે બીજો કંઈ ઉપાય, કારણ કે 10 થી 15 વર્ષમાં તમે જોશો કે હવે સોસાયટી જે સેલ્ફ ડાયરેક્ટેડ લર્નિંગ પોતાની જાતે, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ઘોડાને તમે સરોવર પાસે લઈ શકો, પીવડાવી ન શકો. એ તમારે પીવડાવવાની વૃત્તિ જગાડવા માટે જો તમે પ્રયત્ન કરવાનું શરૂ કરો, આઈ થિંક અચિતભાઈના પ્રશ્નનો ઉકેલ આવી શકે. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now, I would like to invite Tani and Vensi to say a short poetry in Hindi. जब से देखा था हमने स्वतंत्रता का सपना, जब से देखा था हमने स्वतंत्रता का सपना, हर पल दिल में बसा रहता है वो अपना. वो लम्हे याद आते हैं, संघर्ष की बातें, सपनों को पूरा करने का था एक वादा. बड़े बड़े वीरों ने जब किया था बलिदान, तब पाया था हमने भारत अपना. खुशबू आजादी की बसी हर सांस में, जाने ना देंगे इसे, ये वादा है हमारा. आओ मिलकर करें इस धरती को सलाम, जिसने हमें दिया है स्वतंत्र भारत अपना. कभी न भूल पाएंगे वह शहीदों की कुर्बानी, जिन्होंने हंसते हंसते दी थी वतन पर अपनी जवानी. आजादी की वह रोशनी है उनकी अमानत, हर दिल में बसती है भारत माँ की कहानी. झुका नहीं जो तिरंगा कभी, वो हमारी जान है, देश की रक्षा में हर सिपाही हमारी शान है. आओ मिलकर करें इस आजादी का सम्मान, क्योंकि इस देश की आन बान शान है हमारा तिरंगा. Thank you so much. It was amazing. मैं सभी से विनती करती हूँ कि खड़े हो और त्रिपदा सॉन्ग के लिए तैयार हो जाए. स्कूल स्टूडेंट, त्रिपदा सॉन्ग के बाद मूव नहीं करना, आपको बैठना है थोड़ी देर के लिए. हाँ,
सितारे हैं आसमां में चमकते हैं, उनको हवाएं हैं बहारों में महकते हैं। सितारे हैं आसमां में चमकते हैं, उनको हवाएं हैं बहारों में महकते हैं। कुछ कर दिखाएंगे, कुछ कर दिखाएंगे, कुछ कर दिखाएंगे, कुछ कर दिखाएंगे। हम चंदा सुंदर बनके दुनिया को चमकाएंगे, हम फूल दुनिया बनके बगिया को महकाएंगे। हम चंदा सुंदर बनके दुनिया को चमकाएंगे, हम फूल दुनिया बनके बगिया को महकाएंगे। बिगड़ा रहे महान, बिगड़ा रहे महान, बिगड़ा रहे महान, बिगड़ा रहे महान। Let us sing Jesus song and tomorrow, let us sing Jesus song and tomorrow, let us sing Jesus song and tomorrow, let us sing Jesus song and tomorrow. Now I will kindly request everyone to please take their seats. I would invite Hed Darji for the vote of thanks. I am Hed Darji on the behalf of the school express a warm and hearty thank you to distinguished guests for gracing us with your presence on this occasion. Your support, encouragement and enthusiasm have added immense value to this occasion. We extend your sincere appreciation to both of you for taking the time out from your busy schedule to be here today. Your support and presence inspire us to continue working towards a stronger nation. Thank you for being the part of this memorable day. We sincerely thank you to our managing directors, principals and coordinators to be here to inspire all of us. We from the bottom of the heart thank you to our dedicated teachers for their hard work and guidance. We extend our appreciation to our diligent staff, volunteers and everyone who had contributed to this memorable event. Thank you all again. Jai Hind. Thank you so much. Thank you. Commander, you come.
हेलो लियो सर वहां से डिस्पोज कर दो। टीचर्स के लिए चाय नाश्ता है, ग्रुप से जाना। बच्चों को वहां से मूव कर दो। हेमंत सर, चंदन सर पीछे चेक करो। All teachers from PES, please come out.